Hello students, welcome back to yet another session for the ongoing topic in CA Intermediate paper number 1, that is branch accounting. So concept of independent branches was going on till the previous lecture, and we had discussed all the theory concepts that are useful to do the practical questions, right? So we had discussed 4 different steps, in which the very first step was the basic journal entries that are made by the head office and the branch. In the second concept, we studied about the inter-branch transactions. Then came the point of reconciliation, and finally we learned the technique about the incorporation. Okay, so in this class we are starting with the questions. Okay, we are starting with the questions from our book. So take out your copies as well as the book, and we are first of all trying question number 15. Question number 15 we are solving now as the very first question of independent branches. Okay, question number 15. Now, before solving the question, there is one more point left in the topic of incorporation, that is called the stock reserve. Okay, which we'll be writing later on. But what I am trying to say is that you have to leave out approximately one page. Okay, till now you have written till this note in your copies. सब बच्चों ने यहाँ पे ये जो नोट मेंशन्ड है यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया होगा, राइट? तो इसके बाद में आप अप्रोक्सीमेटली एक पेज और छोड़ दीजिए. ये पेज अपन स्टॉक रिजर्व के लिए छोड़ रहे हैं, जो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन खत्म कराने के बाद में लिखवाऊंगा. स्टॉक रिजर्व का आपको मीनिंग मैं लिखवाऊंगा. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है ब्रांच अकाउंट्स के अंदर, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट. तो मैं भी अपने लिए यहाँ पे एक पेज छोड़ रहा हूँ, आपको भी एक पेज छोड़ देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. ओके, चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट. एक एक बात को समझना है बहुत ध्यान से, अच्छे से देखिएगा. केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स which it sells to wholesale customers only from its head office. So head office is selling only to the wholesale customers. Okay. In addition, the HO transfers goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%. वो ब्रांच को भी गुड्स सेल करता है, और जब ब्रांच को गुड्स सेल करते हैं तो कॉस्ट में 15% का प्रॉफिट जोड़ के सेल करते हैं. द ब्रांच देन सेल्स these goods to the general public only on the cash basis. So branch will not have any kind of debtors because branch is making only and only the cash sales. The selling price to the wholesale customer is designed to give a factory profit that amounts to 30% of the sales. जब हम लोग wholesale customers को sell करते हैं तो wholesale customer के लिए जो हमें GP रेट इस्तेमाल करना है वो कितना है? 30%. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हेड ऑफिस है उसका प्रॉफिट का अलग अलग रेशो है. जब वो बाहर वालों को सेल करेगा, बाहर वाले मतलब ब्रांच के अलावा जब सेल करेगा तो उस पर 30% का जीपी अर्न होगा ऑन सेल्स, 30% ऑन सेल्स. पर जब ट्रांसफर ब्रांच को किया जाएगा तो ब्रांच पे 15% ऑन कॉस्ट का जीपी अर्न होगा. आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस है. यही फायदा है कि जो ब्रांच है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से गुड्स परचेज कर सकता है, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है. अगर बाहर से खरीदेंगे महंगा मिलेगा, बट अगर हेड ऑफिस से परचेज करेंगे सस्ता मिल जाएगा. उससे ब्रांच के पास भी स्कोप होगा प्रॉफिट अर्न करने. ओके, the selling price to the general public is designed to give a gross margin, that is a selling price less cost of goods from HO of 30% of the sales value. Now here also the branch is also earning the profit. When the branch is selling to the general public, it is again earning a profit of 30% of the sales value. Okay, next, the company operates from rented premises and leases all other types of the fixed assets. The rent and hire charges of these are included in the overhead cost shown in the trial balance. बोलते हैं कंपनी ना उसने जो जगह है वो किराए पे ले रखी है, यानी कि लीज पे ले रखी है, और ये जो भी रेंट के चार्जेस हैं, हायर के चार्जेस हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड करके दे दिए हैं. हमें प्रिपेयर क्या करना है? हमें कॉलमनर फॉर्म में प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of the head office, of the branch and of the entire business. यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 डिफरेंट कॉलम्स ओपन करने पड़ेंगे. एक तो हेड ऑफिस के लिए होगा, दूसरा ब्रांच के लिए होगा, और तीसरा एंटायर बिजनेस एज अ होल के लिए होगा.
और उसके अलावा हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है एंटायर बिजनेस का, ठीक है। आगे देखिए कुछ डिटेल्स हमें गिवन है, रॉ मटेरियल्स परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक गिवन है। स्टॉक में दो चीजें हैं, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक भी है, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी है, डेटर्स, कैश, एडमिन सैलरी, सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, इंटर यूनिट अकाउंट्स। ध्यान दीजिए बच्चों, इंटर यूनिट अकाउंट्स इसका मतलब क्या हुआ, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट। तो हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट है इट इज रिफ्लेक्टिंग अ बैलेंस ऑफ 5000, बट ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट है इट इज रिफ्लेक्टिंग अ बैलेंस ऑफ 2000। और आपको मैंने एक बात समझा रखी है कि जब भी इंटर यूनिट अकाउंट के बैलेंस डिफरेंट हो जाएं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन करे बगैर हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, इनकॉर्पोरेशन नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए कैपिटल का अमाउंट है 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 13,000, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, इसी को हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, जिसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय, और इसके बारे में हम नोट्स भी लिखेंगे जिसके लिए हमने एक पेज छोड़ दिया है। सेल्स का अमाउंट है 2,65,200, गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखिए बच्चों गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो हेड ऑफिस की ओर से बैलेंस है वो 46,000 का है, बट गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ जो ब्रांच को मिला है वो ओनली 44,500 है। क्लियरली इट इज अ पॉइंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। आगे देखिएगा कुछ और हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, और लास्ट में यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्रांच ऑफ द एचओ एंड द एंटायर बिजनेस, उसके अलावा बैलेंस शीट भी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया है, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम फॉर्मेट्स को प्रिपेयर करते हैं। आप फुल 1 पेज का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ओके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1 पेज का फॉर्मेट सभी बच्चों को ड्रॉ करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, this is for the year ending 31 December 2010. 31 December 2010। जरा देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से डिवीजन कर रहा हूं। आई एम मेकिंग 3 डिफरेंट कॉलम्स। सो पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, ब्रांच एंड टोटल, head office, branch and total. Then again particulars, head office, branch and total. तो बच्चों आज की क्लास के अंदर वैसे आपको पहले से बता दूं मैं, हम केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और काफी सारी हमें यहाँ पे चर्चा करनी है इस क्वेश्चन को लेकर, काफी सारे नए नए पॉइंट्स भी समझने, जो आपके दिमाग में कुछ डाउट्स भी आ रहे होंगे उन डाउट्स को भी मैं रिजॉल्व करवाऊंगा, ओके। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है किसी बच्चे को, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कोर्स को फिनिश करने की। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक बात को लॉजिकली समझेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप सब उसको अटेम्प्ट करने के लिए केपेबल होने चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए। रट कर पढ़ेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगी। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया सबने, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं, हेड ऑफिस का, ब्रांच का और टोटल का। तो जो एचओ का कॉलम है वो क्या शो करेगा, एचओ का इंडिविजुअल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ब्रांच के लिए क्या शो करेगा, ब्रांच का इंडिविजुअल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। और टोटल में क्या शो हो जाएगा, द कंबाइंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज अ होल, द ग्रुप एज अ होल। डन।
आगे बढ़ सकते हैं। अब सेम तरह से मैं यहाँ पे बैलेंस शीट को ही प्रेजेंट करूंगा। बैलेंस शीट as on 31st of December 2010, and I am again dividing the balance sheet into 3 different parts. एक तो हम हेड ऑफिस का इंडिविजुअल बैलेंस शीट शो करेंगे, दूसरा ब्रांच का इंडिविजुअल बैलेंस शीट आएगा, और फिर एंटायर बिजनेस का इंडिविजुअल बैलेंस शीट आएगा। तो बच्चों हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वरना हमें क्या करना पड़ता, 3 बार अलग अलग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता। बट मैंने यहाँ पे क्या करा, बैलेंस शीट के भी कॉलम्स बना दिए। ठीक है, प्रैक्टिकली वैसे ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं चीजों को, इसलिए हमने ऐसा किया है। सो लायबिलिटीज, हेड ऑफिस, branch and total. So total here represents the entire business. Assets, head office, branch and total. ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट सबने रेडी कर लिया है, आगे बढ़ें। देखिए जरा, सबसे पहले हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट अकाउंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टास्क ये होना चाहिए कि हम इंटर यूनिट अकाउंट्स को मैच कराएं, यानी कि हम यहाँ पे रिकंसिलिएशन की एंट्रीज बनाएं। तो आइए बच्चों, वर्किंग नोट पे आ जाएं। बैलेंस शीट के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं वर्किंग नोट 1, and the first working note is regarding the reconciliation of inter-unit account balances. Reconciliation of the inter-unit account balances. ठीक है जी, यहाँ पे हम reconciliation का जो प्रोसेस है वो शुरू कर रहे हैं। So this is the books of head office. And here we have the books of branch. तो बच्चों मैं यहाँ पे जो जर्नल की एंट्रीज है वो नहीं बना रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली मेकिंग द लेजर अकाउंट। सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ माई वर्किंग नोट ओनली, तो इट इज बेटर कि हम यहाँ पे लेजर अकाउंटिंग डायरेक्टली कर लें। वैसे भी जर्नल की एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया, और इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। तो बेटर है कि डायरेक्टली अपन इसका लेजर ही प्रिपेयर कर लें, और ये जज कर लें कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स का यहाँ पे रिकंसिलिएशन करना है, और उसको करने के बाद में जो बैलेंस है वो एक बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, सो हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, this we are preparing for the purpose of doing the reconciliation. Look at the first point of reconciliation. What is given? On 28th of December 2010, the branch remitted rupees 1500 to HO, and this has not yet been recorded in the HO books. branch ने 1500 का रेमिट किया था कैश, ठीक है, 28th ऑफ दिसंबर को, बट अभी तक हेड ऑफिस की बुक्स में ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इट मींस दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ कैश इन ट्रांजिट। यस, ये पॉइंट किस चीज का है बच्चों? कैश इन ट्रांजिट का पॉइंट है, जिसकी एंट्री यहाँ पे हेड ऑफिस को क्रिएट करनी होगी।
वाई इज दैट सो? क्योंकि ब्रांच ने अपनी तरफ से जो कैश है वो डिस्पैच कर दिया है, कैश रेमिट कर दिया है 1500 का, बट अभी तक हेड ऑफिस ने इसके रिगार्डिंग कोई भी एंट्री नहीं बनाया। तो कैश इन ट्रांजिट का जो रिसीविंग एंड है वो किसके पास में? हेड ऑफिस के पास में है। तो हेड ऑफिस को यहाँ पे एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो हेड ऑफिस की किताबों के अंदर हम लिखेंगे कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, यानी ब्रांच में आ जाएगा बाय कैश इन ट्रांजिट, ब्रांच में आ जाएगा बाय कैश इन ट्रांजिट, एंड कैश इन ट्रांजिट का अमाउंट है 1500 इन द ब्रांच अकाउंट that is showing in the books of head office. We have written the entry by cash in transit 1500. देखा सबने? तो इसका इंपैक्ट अब क्या आएगा? आप देखिए हमारे पास ऑलरेडी कितना कैश गिवन है। कैश का अमाउंट 22,000 है, जरा देखिएगा। कैश का जो अमाउंट है वो 22,000 है हेड ऑफिस के लिए और 1,000 का अमाउंट है ब्रांच के लिए, यानी यहाँ पे जो टोटल कैश का अमाउंट है वो है 23,000। ओके, बट कैश इन ट्रांजिट का अमाउंट अलग से कितना है? कैश इन ट्रांजिट का अलग से अमाउंट है 1500, विच मीन्स दैट जब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? आप देखिए हमने यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट का एंट्री बना दिया, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, बट उसका सेकंड इफेक्ट है वो किस में आएगा? इसका सेकंड इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट में ऑन द असेट साइड वी आर मेंशनिंग कैश, कैश इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट, कैश इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट। Okay, cash including cash in transit. So what is the original cash balance of head office? It is 22,000, but 1500 is in transit. So the cash balance will be 23,500 for the head office. For branch it is 1,000 and the total for the entire business will be 24,500. पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? जो भी पॉइंट सॉल्व करें उसका कंप्लीट इंपैक्ट भी देख लें कि इसका इंपैक्ट कहां पे आना चाहिए। तो कैश इन ट्रांजिट का जो इंपैक्ट होगा वो बैलेंस शीट पे आएगा, तो मैंने बैलेंस शीट पे यहाँ पे इसको ट्रीट कर दिया है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी में आगे क्या लिखा है? ऑल्सो ऑन द सेम डेट एचओ डिस्पैच्ड गुड्स टू द ब्रांच इनवॉइस एट ₹1500 and these two have not been entered in the branch books. ठीक है, the company policy is to adjust items in transit in the books of the recipient. वैसे लिखने वाली बात ही नहीं थी क्योंकि हम लोग हमेशा रेसिपिएंट की किताबों में ही ट्रांजिट का एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये वाली बात यहाँ पे फालतू लिखी हुई है। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम सेम पॉलिसी को फॉलो करते। तो बच्चों हेड ऑफिस ने 1500 के जो गुड्स हैं वो डिस्पैच कर दिए हैं। ठीक है, 1500 के गुड्स डिस्पैच कर दिए। किसने डिस्पैच करे? हेड ऑफिस ने। बट इसका जो एंट्री है वो हमने कहाँ पे नहीं बनाया? इसका एंट्री हमने ब्रांच में नहीं बनाया। तो ब्रांच में इसका एंट्री बनाएंगे, जरा देखिए आप। ब्रांच में एंट्री बनाया जाएगा, एंट्री बनेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो मैंने हेड ऑफिस में लिख दिया है बाय गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, एक लाइन मैंने छोड़ा है बैलेंस को लिखने के लिए, बाय गुड्स इन ट्रांजिट 1500। Is that clear? हेड ऑफिस के अकाउंट में, ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस अकाउंट है वहां पे हमने एंट्री डाला है बाय गुड्स इन ट्रांजिट 1500। राइट बच्चों, गुड्स इन ट्रांजिट का जो इंपैक्ट है वो किस में आएगा? गुड्स इन ट्रांजिट का इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और बैलेंस शीट में अगर आप स्टॉक ऑफ गुड्स देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के स्टॉक्स हैं, एक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एक है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कौन से गुड्स सेंड करे होंगे? ऑब्वियस सी बात है हेड ऑफिस ने ब्रांच को फिनिश्ड गुड्स सेंड करे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि जो हेड ऑफिस है वो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करता है ब्रांच को।
बिकॉज हेड ऑफिस अगर रॉ मटेरियल ट्रांसफर करेगा ब्रांच को तो ब्रांच कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका, बिकॉज यहाँ ब्रांच अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। और ब्रांच क्या करता है? ओनली सेलिंग। तो ब्रांच के पास ऑब्वियस सी बात है कौन से गुड्स आने चाहिए? ओनली एंड ओनली फिनिश्ड गुड्स आने चाहिए, राइट? तो बच्चों यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो किस पे आएगा? जो गुड्स का बैलेंस है वो इंक्रीज होकर आएगा। एंड अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अवेलेबल है ही नहीं, ना तो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक दे रखा है और ना ही फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है। मुझे जो स्टॉक अवेलेबल है वो ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक ऑन 1/1/2010, बट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में डेफिनेटली लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, बट अगेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये जो गुड्स इन ट्रांजिट का पॉइंट है वो किस में जोड़ना पड़ेगा? फिनिश गुड्स के स्टॉक में जोड़ना पड़ेगा, जो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको बाद में जोड़ूंगा। ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बाद में हम नोटिस करेंगे। कहाँ पे नोटिस करेंगे? इन द बैलेंस शीट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्या गुड्स इन ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है वो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करना है या नहीं करना है? जरा सोच के बताएंगे आप सब। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हमें गुड्स इन ट्रांजिट का इम्पैक्ट शो करना है या उसके बिना काम चल जाएगा? हाँ जी बताइए, क्या हमें गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग एंड पी&एल में करना है? वैसे इसका आंसर ढूंढना बड़ा सिंपल है, करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में शो होता है वही क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। बट क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो अभी फिलहाल हम गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट को थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे पहले से मेंशन कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, हम बैलेंस शीट में पहले से मेंशन कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास दो तरह के स्टॉक्स आएंगे, एक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और दूसरा है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और जो भी हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा उस फिनिश गुड्स के स्टॉक में ट्रांजिट का आइटम भी शामिल हो जाएगा, तो इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है बच्चों, ये बात मैंने पहले से मेंशन कर दी है, जिससे जब हम बाद में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया है, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक है और फिनिश गुड्स का स्टॉक है। जब फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंशन करेंगे तो साथ में उसमें ट्रांजिट आइटम्स को भी जोड़कर लिखेंगे, राइट? इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर आप देखें तो जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो रिकंसिलेशन के पॉइंट्स नहीं हैं। आगे हमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, फिर आगे लिखा है यू आर एडवाइज दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट द एचओ और एट द ब्रांच। कोई भी स्टॉक का लॉस नहीं है। कंपनी का प्रैक्टिस ये है कि फिनिश गुड्स को अपन फैक्ट्री कॉस्ट से वैल्यू करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस का यानी सेमी फिनिश गुड्स नहीं है। ब्रांच के एम्प्लॉयज को हमें 156 रुपीज का बोनस पे करना है। तो आप देखें अगर ये जो पॉइंट्स हैं वो रिकंसिलेशन के लिए नहीं है, यानी रिकंसिल जो इसका रिकंसाइल करने का पॉइंट था वो ओनली फर्स्ट पॉइंट में ही अवेलेबल था। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्रीज बनाने के बाद में जो हमारे इंटर यूनिट अकाउंट्स हैं वो आपस में टैली हो जाने चाहिए। तो जरा आप देखें, इंटर यूनिट अकाउंट हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है 5000 है ऑन द डेबिट। तो जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर करा था वर्किंग नोट उस पर आ जाइए। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 5000 डेबिट। एंड ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट है इट इज 2000 ऑन द क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 2000 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब हम निकाल सकते हैं टू बैलेंस CD दैट इज 3500। और सिमिलरली अपन यहां पे भी निकाल सकते हैं बैलेंस CD विच इज बाय बैलेंस CD एंड इट इज ऑल्सो 3500।
यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व दैट कि जो हमारे बैलेंसेस हैं वो आपस में टैली हो चुके हैं, ठीक है ना। हेड ऑफिस में भी टैली हो गया और ब्रांच में भी टैली हो चुका है। 3500 का इंटर यूनिट अकाउंट का बैलेंस आ चुका है। इसका मतलब कि हम क्वेश्चन में अब आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ये सब बातें सब बच्चों को समझ में आ रही हैं। स्टार्टिंग के जो भी बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। एंट्रीज हमने समझी, रिकंसिलेशन किया। अभी तक हमने इनकॉर्पोरेशन करना स्टार्ट नहीं करा है। अभी तक हमने एंटायर ग्रुप का ट्रेडिंग एंड पेंडल प्रिपेयर नहीं करा, एंटायर ग्रुप का बैलेंस शीट नहीं बनाया, ओनली फॉर्मेट बनाया था और स्टार्टिंग के हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स सॉल्व किए हैं। ओके, coming to the next adjustment, the stock of raw materials at HO on 31 December 2010 was valued at rupees 2300। आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है फॉर द रॉ मटेरियल्स। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा जाएगा? मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ स्पेस को छोड़कर एंट्री बना दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक में हमने यहाँ पे मेंशन किया है रॉ मटेरियल्स। नाउ अ वेरी सिंपल पॉइंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्या ब्रांच के पास में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? क्या ब्रांच के पास में क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रांच है दैट इज डीलिंग ओनली इन द फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है दैट इज ओनली विद द हेड ऑफिस, दैट इज 2300 राइट। सो 2300 मैंने एचओ में लिखा, ब्रांच में कुछ भी नहीं है, तो एंटायर बिजनेस का भी जो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है? 2300 का है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? वी आर मूविंग पॉइंट बाय पॉइंट, जल्दबाजी करे बिना। बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 2300 and this stock of raw material shall also be presented in the balance sheet। हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हेड ऑफिस में आएगा 2300, ब्रांच में पॉसिबल नहीं है, तो टोटल अमाउंट भी हो गया 2300। ओके, देखिए बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग है। वी आर जस्ट मेकिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, नथिंग एल्स। बट यहाँ पे जो नजरिया है वो किसका हो गया? हेड ऑफिस, ब्रांच एंड द एंटायर बिजनेस। तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट को बना रहे हैं। इज दैट फाइन? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ये एज सच हमारे काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ब्रांच के एम्प्लॉयज को बोनस पे करना है 156 रुपीज का अंडर अ बायलेटरल एग्रीमेंट। व्हाट इज मेंट बाय अ बायलेटरल एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट हुआ है ब्रांच एंड ब्रांच के एम्प्लॉयज के बीच में, तो उन्हें हमें बोनस पे करना है 156 रुपीज का। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई भी बोनस के नाम से एंट्री अवेलेबल है? क्या ट्रायल बैलेंस में हमें कोई भी एंट्री बोनस के नाम से गिवन है? नहीं है। इसका मतलब ये जो बोनस है वो अभी तक पे नहीं हुआ है, बोनस अभी पे करना बाकी है, वर्थ रुपीज 156। तो ये बोनस का हम लोग यहाँ पे एंट्री जो है वो क्रिएट करेंगे। कौन क्रिएट करेगा? ब्रांच। ये जो बोनस का एंट्री है वो हेड ऑफिस में नहीं आएगा, क्योंकि हेड ऑफिस को बोनस पे नहीं करना। जो बोनस है वो यहाँ पे ब्रांच को पे करना और ब्रांच को अपने एम्प्लॉयज को जो है बोनस देना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताएं जरा इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। बोनस प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो मैंने थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ के ट्रेडिंग के लिए एंट्री बना दिया है टू बोनस आउटस्टैंडिंग, टू बोनस आउटस्टैंडिंग ओनली इन द ब्रांच कॉलम 156, और टोटल कॉलम में भी आ जाएगा 156। द अमाउंट ऑफ बोनस इज 156 फॉर ओनली द ब्रांच, and this bonus outstanding will be also shown in the balance sheet। बोनस आउटस्टैंडिंग हेड ऑफिस के लिए नहीं है, ब्रांच के लिए है 156, and as a total it is also 156। is that fine? यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आ रही है? तो आप देखिए जो हमारा एडजस्टमेंट्स का पार्ट है वो तो हमने फिनिश कर दिया है। ओके, कमिंग टू दी अदर पॉइंट्स नाउ। सबसे पहला आपको गिवन है रॉ मटेरियल परचेस्ड, रॉ मटेरियल परचेस्ड। तो रॉ मटेरियल का जो परचेज है वो डेफिनेटली ब्रांच के लिए नहीं हो सकता, ओनली किसके लिए होगा? हेड ऑफिस के लिए होगा। सबसे पहले
ट्रेडिंग के अकाउंट में परचेज से पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू ओपनिंग स्टॉक, to opening stock. Now opening stock is again for two items, that is raw materials and the finished goods. Raw materials and the finished goods. So what is the stock of raw materials at the head office? It is 1800 and for finished goods it is 13,000. So 1800 and 13,000 is the stock of raw material and of the finished goods. बच्चों क्या ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं होगा. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इट ट्रांसफर्स द गुड्स टू अ न्यूली ओपन ब्रांच. ब्रांच हमने बिल्कुल नया नया ओपन करा है. अगर नया नया ब्रांच ओपन करा है तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं हो सकता. ना ही ब्रांच का अवेलेबल, ना ही रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा और ना ही फिनिश गुड्स का स्टॉक रहेगा. अच्छा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो ब्रांच है फिनिश गुड्स में डील कर रहा है. तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो केवल किस में लिखा है? हेड ऑफिस में. टोटल स्टॉक ऑफ ओपनिंग इज हाउ मच? 1800 and 13,000. Is it fine? 1800 and 13,000. बच्चों यहां तक की जो कहानी है सभी को समझ में आ चुकी है. आगे बढ़ा जाए अब. कोई भी डाउट इसके अंदर? मैंने यहां पे लिखा है टू परचेजेस, जो हमारा अगला पॉइंट था. ओपनिंग स्टॉक के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस की वैल्यू, एंड जो परचेजेस हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है रॉ मटेरियल्स के लिए 35,000. द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इज 35,000. ऑब्वियसली बात है ये भी ओनली हेड ऑफिस में आएगा, ब्रांच में नहीं आ सकता, बिकॉज ब्रांच इज डीलिंग ओनली इन द फिनिश गुड्स एंड नॉट इन द रॉ मटेरियल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्ट वेजेस. क्योंकि ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा तो ब्रांच में वेजेस का अमाउंट भी नहीं होगा डायरेक्ट नेचर का. सो टू वेजेस, एंड वेजेस आर रिटन इन द कॉलम ऑफ HO, that is 108500. 108500. टोटल में भी सेम आ जाएगा 108500. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट इज गिवन एट ₹39,000. तो मैंने फिर से यहाँ पे एक एंट्री बना दिया टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. To factory overheads, that is 39,000 only for head office and not for branch. ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं सब बच्चों को? आगे देखिएगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, देन कम्स द अमाउंट ऑफ डेटर्स. सो डेटर्स आर ओनली विद हेड ऑफिस, they are not with branch because branch is selling only on the cash basis. क्वेश्चन में लिखा हुआ था. तो डेटर्स का अमाउंट है 37,000. बैलेंस शीट पे आ जाइए, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं डेटर्स एट अ वैल्यू ऑफ 37,000. so 37,000 in head office, nothing in branch, and total is again 37,000. ओके, डेटर्स के बाद में आ गया कैश. कैश का ट्रीटमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आर 13,900 and 4,000. दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर राइटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, at an amount of 13,900 and 4,000. So 13,900 and 4,000, total amount will be 17,900. 17900. नेक्स्ट पॉइंट, सेल्समैन का सैलरी है 22,500 and 6,200. तो ये भी लिखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस में टू
सेल्समैन सैलरीज, सेल्समैन की सैलरी 22,500 6,200, 22,500 6,200, that is 28,700। बच्चों कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो हम जो भी सॉल्व करें इट इज वेरी वेरी इजी। आगे लिखा है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स 12,500 and 2,300 to admin and selling overheads। So admin and selling overheads, इसको भी जरा रिकॉर्ड किया जाए with amount of 12,500 2,300। Total amount is 14,800 14800, right? Next we have inter unit accounts। इंटर यूनिट अकाउंट इसका मतलब क्या हो गया, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट। तो बच्चों ये जो हेड ऑफिस और ब्रांच के अकाउंट्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होंगे। यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हेड ऑफिस के लिए बच्चों बैलेंस शीट में हमें हेड ऑफिस के लिए शो करना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। हेड ऑफिस के लिए हमें डेबिट में शो करना पड़ेगा यानी कि एसेट में शो करना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट का बैलेंस, और ब्रांच के लिए हमें शो करना पड़ेगा हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस। ओके, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट आएगा एंड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट आएगा। तो बच्चों सुनिएगा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे टोटल कॉलम में कुछ भी नहीं लिखूंगा। हेड ऑफिस अकाउंट का जो हमने लायबिलिटी साइड में बैलेंस लिखा है ब्रांच के कॉलम में, उसको टोटल में नहीं लिखा जाएगा। सिमिलरली जो हमने ब्रांच का अकाउंट मेंशन किया है एसेट साइड में हेड ऑफिस के कॉलम में, उसको भी टोटल में नहीं लिखा जाएगा। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस, हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम इसको टोटल में नहीं लिखते। बच्चों प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट क्या शो करता है। हेड ऑफिस अकाउंट बेसिकली ब्रांच ने ओपन किया था इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। इन द सेम वे ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस ने ओपन किया था किस लिए, इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जब हम लोग मर्जर करेंगे, सुनिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, जब हम लोग मर्जर करेंगे तो मर्जर करते समय क्या होने वाला है, मर्जर करते समय हेड ऑफिस और जो ब्रांच के बैलेंसेस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच का अकाउंट असेट में शो कर रखा है और ब्रांच ने हेड ऑफिस का अकाउंट लायबिलिटी में शो कर रखा है। क्या आपको नहीं लगता ये दोनों अकाउंट्स एक दूसरे के अपोजिट्स हैं? यस और नो? और इनका बैलेंस भी क्या है, सिमिलर है। आप देखिए इनका जो बैलेंस है एट प्रेजेंट कितना है, 3,500 ईच, 3,500 फॉर द हेड ऑफिस अकाउंट एंड 3,500 फॉर द ब्रांच अकाउंट। यानी कि सेम टाइप ऑफ बैलेंसेस हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। जहां पे ब्रांच अकाउंट ओपन किया था हेड ऑफिस की किताबों के अंदर और हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन हुआ था ब्रांच की किताबों के अंदर। तो बच्चों जब हम लोग बनाएंगे कंबाइंड बैलेंस शीट, जब टोटल कॉलम बनाएंगे बैलेंस शीट का, या जब बैलेंस शीट एंटायर बिजनेस का बनेगा, तो ये हेड ऑफिस का अकाउंट और ब्रांच अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा आइटम्स हैं, दे आर द अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। आप सोचिए हम एक ग्रुप का बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो ग्रुप में कौन आ गया, हेड ऑफिस भी आ गया और ब्रांच भी आ गया। तो जब ग्रुप का बैलेंस शीट बना रहे हैं तो प्रैक्टिकली सोच कर देखिए कि क्या उसमें हेड ऑफिस का अकाउंट आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या उसमें ब्रांच का अकाउंट आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, तो टोटल में इसको नहीं लिखा जाएगा, ओनली हेड ऑफिस के कॉलम में लिखा जाएगा और ब्रांच कॉलम में लिखा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही कॉमन बात आपको हर चीज के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट जब हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे अभी, तो जब कंप्लीट करेंगे तो जो भी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आपको टोटल कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करने, क्योंकि अगेन वो एक कॉन्ट्रा आइटम कहलाएगा। ठीक है, तो जब ग्रुप की बात करेंगे
तो इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस इग्नोर करे जाएंगे। ठीक बात है, समझ में आ रही है। बट जब इंडिविजुअली रिकॉर्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस शो करने पड़ेंगे, जैसा हम शो करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब इनका बैलेंस हमें नोट करना है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बैलेंस का अमाउंट कितना दे रखा है, 3500। बट मुझे इस बैलेंस के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट का अमाउंट क्यों ऐड करना है। बच्चों देखिए, जब ब्रांच हेड ऑफिस के साथ में इनकॉर्पोरेशन करेगा, जब ब्रांच हेड ऑफिस के साथ में इनकॉर्पोरेशन करेगा तो ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच अपने सभी बैलेंसेस को हेड ऑफिस के साथ में ट्रांसफर करके भेजेगा। तो हेड ऑफिस को एसेट का बैलेंस ट्रांसफर करा जाएगा, हेड ऑफिस को लायबिलिटीज का बैलेंस ट्रांसफर करा जाएगा, हेड ऑफिस को प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर करा जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच क्या करता है, ब्रांच जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो उसको हेड ऑफिस अकाउंट में ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट है वो किसको ट्रांसफर करना है, हेड ऑफिस को ट्रांसफर करना है, व्हाइल मेकिंग व्हाट, द इनकॉर्पोरेशन। तो अभी मैं यहाँ पे जो हमने बैलेंस निकाला है 3500 का, मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, हम इसको बाद में करेक्ट करेंगे। इस बैलेंस के अंदर हम प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करेंगे जो ब्रांच अर्न करेगा और फिर उसके बाद इन बैलेंसेस को यहाँ पे स्टेट करा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पॉइंट को अभी इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि अपन ने पहले से मेंशन कर दिया है कि हमें लायबिलिटी साइड में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंशन करना है और एसेट साइड में ब्रांच का अकाउंट मेंशन करना है। बट जो बैलेंस है वो अभी लिख नहीं पाएंगे, वो हमें बाद में नोट डाउन करना होगा। ओके, मूविंग फर्दर, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें आपको गिवन है कैपिटल एंड कैपिटल का अमाउंट गिवन है 50,000। ओके, कैपिटल अमाउंट इज 50,000 एंड कैपिटल जो है वो हेड ऑफिस में आएगा 50,000 एंड टोटल में आएगा 50,000। ओके, उसके बाद देखिए क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000 का बैलेंस है, क्रेडिटर्स 13,000 का बैलेंस है ओनली फॉर द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस में लिखा जाएगा और टोटल में लिखा जाएगा। देन उसके बाद में है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक। ये पुराना प्रोविजन है 1200, इसी को अपन स्टॉक रिजर्व कहते हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी सेल्स का अमाउंट गिवन है 2,65,200। तो आइए बच्चों यहाँ पे रिपोर्ट करा जाए सेल्स को, बाय सेल्स, बाय सेल्स। सेल्स का मतलब क्या हुआ, एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स का मतलब वो हुआ जो उसने आउटसाइड कस्टमर्स को सेल किया है। तो आउटसाइड कस्टमर को जो सेल करा है दैट इज फॉर ₹2 लाख। और ब्रांच तो डेफिनेटली आउटसाइड को ही सेल करता है, ब्रांच कभी हेड ऑफिस को गुड सेल नहीं करता। तो ब्रांच के लिए सेल्स का अमाउंट कितना है, 65,200। इन टोटल जो सेल्स का अमाउंट निकल कर आएगा दैट इज 265,200। इन टोटल जो सेल्स का अमाउंट है दैट इज 265,200। ओके बच्चों, हेड ऑफिस इसके अलावा कुछ और भी सेल्स करता है और उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। सो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। नाउ रिमेंबर दिस इज आल्सो एन इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन, इट इज एन इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन। तो ये हमें कहां पे रिपोर्ट करना है, ओनली एंड ओनली इन द एचओ कॉलम, नॉट इन द टोटल कॉलम, नॉट इन द ब्रांच कॉलम। गुड्स सेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ट्रीट करा जाएगा, बट सेल्स से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको एक अलग से नाम दे देते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच का अमाउंट है यहाँ पे बच्चों 46,000 का अमाउंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच का। ओके, सिमिलरली हम लोग यहां भी एंट्री बनाएंगे टू गुड्स रिसीव्ड, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम whom, फ्रॉम एचओ, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। एंड ये भी ओनली ब्रांच कॉलम में लिखा जाएगा, टोटल कॉलम में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये इंटर ग्रुप आइटम है, ये ग्रुप के विद इन का आइटम है एंड इट इज 46,000। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर आपने अमाउंट यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्योंकि सर ये अमाउंट तो था 44,500। बच्चों ये अमाउंट 44,500 था ट्रांजिट का एंट्री बनाने से पहले, बट जब हमने पॉइंट नंबर 1 में रिकंसिलेशन किया और रिकंसिलेशन की हेल्प से हमने ट्रांजिट का एंट्री बनाया, सो डोंट यू थिंक कि जो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ का एक्चुअल अमाउंट है वो 46,000 में कन्वर्ट होगा? प्लीज टेल मी, इज दिस ओपिनियन करेक्ट और नॉट?
हो सकता है ये गलत भी हो, आपको सोचना है कि क्या ये चीज सही है या गलत है, बताइए क्या किया जाए, 46,000 लिखा जाए या फिर 44,500 ही रहने दिया जाए। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि यहाँ पे हमें 46,000 लिखना होगा, क्योंकि जब हम गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बना रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि हमारे पास 44,500 के गुड्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड 1500 के ट्रांजिट में हैं। तो कुल मिलाकर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस का अमाउंट कितना हो जाएगा, 46,000। तभी आप देखिए जब मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करूंगा, जब मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का मेंशन करूंगा, तो आपको मैंने कहा था मैं यहाँ पे ट्रांजिट जोड़ूंगा, यानी कि यहाँ पे जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ट्रांजिट ऑलरेडी ऐड होकर आएगा। क्यों ऐड होकर आएगा, अप्लाई सम कॉमन सेंस। अगर मैंने यहाँ पे 1500 का एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करा है तो ऑब्वियस सी बात है जब स्टॉक का अमाउंट आएगा तो उसमें ऑलरेडी 1500 जुड़कर आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए, सिंपल अकाउंटिंग है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 46,000 की जगह पर अमाउंट लिखूंगा 44,500, तो मेरा स्टॉक का अमाउंट ऑटोमेटिकली 1,500 रुपीज कम आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिट का अमाउंट पहले से ही जोड़ दूंगा 46,000, तो यहाँ पे जो स्टॉक का अमाउंट निकल कर आएगा वो 1,500 रुपए ज्यादा आएगा। यस, तो इसीलिए जो फिनिश गुड्स का अमाउंट लास्ट में आना है उसमें डेफिनेटली ट्रांजिट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट, उसमें ट्रांजिट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। जब हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालेंगे तो उसमें ट्रांजिट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड होकर ही आएगा। इज द फंडा क्लियर और नॉट टू ईच एंड एवरी वन? तो मैंने यहाँ पे सेल्स का अमाउंट मेंशन कर दिया है, मैंने गुड्स सेंड टू ब्रांच का अमाउंट मेंशन कर दिया, मैंने गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ का अमाउंट मेंशन कर दिया, और आपको मैंने ये भी कहा कि हमें इसे टोटल में नहीं लिखना। अब जरा इमेजिन करिए कि अगर हम इसको टोटल में लिखते तो क्या होता। देखिए, अगर टोटल में लिखते तो यहाँ पे आता 46,000 और यहाँ पे भी आता 46,000। आप समझे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग इट, बिकॉज 46,000 क्रेडिट में भी है और 46,000 डेबिट में भी है। ये आइटम ऑटोमेटिकली कट आउट हो गया, यानी अगर आप इसको लिख भी देंगे देन ऑल्सो इट वोंट मेक एनी सेंस। अब बच्चे बोलते हैं सर जब मान लीजिए अगर हमने गलती से लिख दिया तो क्या होगा। बच्चों अगर आप लिख देंगे तो वैसे तो प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, बट आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। उसके पीछे कारण क्या है, 46,000 का अमाउंट डेबिट में भी है और उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी है, तो ओवरऑल आंसर में इफेक्ट नहीं आने वाला। बट प्रेजेंटेशन वाइज ये चीज गलत है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो ग्रुप के विद इन हुआ है, और जब ग्रुप का आप शो करते हैं पोजीशन तो उसमें ये चीज कैसे आ सकती है। आप सोचिए, आपने अगर आपस में ही लेन देन कर दिया तो वो आपस में किया हुआ लेन देन क्यों रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वी विल इग्नोर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो देखा जाए अब क्या बचता है इसके अंदर, हमने बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो प्रिपेयर कर दी हैं एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व के अलावा हमने यहाँ पे सारा का सारा ट्रीटमेंट कर दिया। अच्छा, अगर हम ऊपर की लाइंस को रीड आउट करते हैं तो वहां पे कुछ ग्रॉस प्रॉफिट की बातें लिखी हुई थी। इसका मतलब ये है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे जीपी का परसेंटेज गिवन है, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो क्यों ना बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया जाए। और सोचिए कि अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पहले से निकल जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर जो स्टॉक का अमाउंट है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर पाएंगे। ठीक बात है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है फिनिश्ड गुड्स का, वो एज अ बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट किया जा सकता है, एंड जो भी ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन होगा वही ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ब्रॉट डाउन कर पाएंगे। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नाउ टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट I am showing a working note, that is working note number 2. Working note number 2. In this I will be showing the calculations of gross profit. So working note number 2, calculation of gross profit. Calculation of gross profit.
सबसे पहले बच्चों हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर हेड ऑफिस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से मालूम चल गया है कि हेड ऑफिस दो जगह से प्रॉफिट कमा रहा है, आउटसाइड सेल्स से और ब्रांच से। अब अगेन सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज ये होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि सर हेड ऑफिस ब्रांच से कैसे कमा सकता है। तो मैं इसका बहुत ही आपको सिंपल सा एक आंसर देना चाहता हूं कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था। जब हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस तो हमने क्या चीज समझी थी, दैट हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड व्हेन दीज आर separate entities from accounting point of view, then why they cannot earn profit from each other? They can definitely earn profit from each other, but जब हम ग्रुप एज अ होल की बात करेंगे तब वो एक दूसरे से प्रॉफिट शायद नहीं कमा पाएंगे। यानी जब मैं हेड ऑफिस का इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं ब्रांच का इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली इन दोनों ने जो आपस में प्रॉफिट कमाया उसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस की आइडेंटिटी सेपरेट है और ब्रांच की आइडेंटिटी सेपरेट है। बट जब इनको मर्ज करेंगे तब हम लोग यहां पे अलग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओनली फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, दीज आर सेपरेट बॉडीज, सो दे कैन डेफिनेटली अर्न प्रॉफिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये मैंने आपके एक डाउट का जवाब दिया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये हेड ऑफिस जो है वो अपनी ही ब्रांच से प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। बिल्कुल कमा सकता है। ठीक है, सो फॉर हेड ऑफिस नाउ व्हाट इज हेड ऑफिस डूइंग, हम जीपी निकालना चाहते हैं फॉर हेड ऑफिस ऑन व्हाट, ऑन सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, ऑन सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, यानी कि जो बाहर के लोग हैं उस पे हमने क्या प्रॉफिट कमाया। इट इज गिवन दैट वी आर अर्निंग अ जीपी ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। जो भी होलसेल कस्टमर्स को अपन बेचते हैं 30% ऑफ सेल्स वैल्यू कमा लेते हैं, और हमने एक्सटर्नल कस्टमर को कितना सेल कराया बच्चों, 2 लाख रुपीज का। सो 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30% इज रुपीज 60,000। ओके, उसके अलावा हमने यहाँ पे ब्रांच से भी अर्न कराए। सो ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, व्हाट आर वी अर्निंग ऑन दिस, जस्ट चेक। ऑन द गुड्स सेंड टू ब्रांच वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द कॉस्ट। बच्चों 15% का प्रॉफिट कॉस्ट पे अर्न किया जाता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 46,000 के गुड्स सेंड टू ब्रांच का अमाउंट गिवन है। 46,000 के गुड्स सेंड करे, इस पे हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, 15% ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो 46,000 की वैल्यू है, ये जो 46,000 की वैल्यू है, क्या ये कॉस्ट पे है? नहीं, ये तो सेल्स वैल्यू पर है। और जो प्रॉफिट है 15% का है, 15% का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट पे है। अब जरा इमेजिन करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट है ₹100 का, कॉस्ट है ₹100 का, और अगर उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाए तो प्रॉफिट है 15 रुपीज का, बिकॉज 15% का प्रॉफिट है एंड कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 115। तो सेलिंग प्राइस इज 115 एंड प्रॉफिट अमाउंट इज 15। सो हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑन द सेल्स वैल्यू ऑफ 46,000? इट इज सिंपली 46,000 अपॉन 115 इंटू 15। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 46,000 को आप डायरेक्टली 15% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 15% कॉस्ट पे है एंड 46,000 इज नॉट द कॉस्ट वैल्यू, इट इज द सेलिंग वैल्यू। ठीक है, सो 46,000 इंटू 15 बाय 115, दिस विल गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो 46,000 सेल्स वैल्यू किसके लिए, हेड ऑफिस के लिए। ये कॉस्ट वैल्यू किसके लिए बनेगा, ब्रांच के लिए। तो ब्रांच के लिए 46,000 कॉस्ट है, बट हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 46,000 सेलिंग वैल्यू है। सो द टोटल प्रॉफिट, द टोटल जीपी earned by the head office is how much?
The total GP earned by the head office is 66,000. 66,000 का GP हेड ऑफिस ने अर्न किया है. क्या हम कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन ब्रांच के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? सो फॉर ब्रांच जरा चेक करें कि ब्रांच कितना परसेंटेज का प्रॉफिट अर्न कर पाता है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्रांच? ब्रांच इज अगेन अर्निंग 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू. जो भी सेल्स का वैल्यू उसको 30% अर्न करता है, और ब्रांच ने कुल मिलाकर कितना सेल्स करा है? 65,200. ठीक है, ब्रांच तो हेड ऑफिस को सेल नहीं करता, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 65,200 का 30% का जीपी आएगा. 65,200 का 30% इज हाउ मच? इट इज रुपीज 19,560. 19,560. Is that clear? 66,000 and 19,560. इसको यहां पे लिख दिया जाए 66,000 and 19,560, और टोटल में भी लिख देते हैं दोनों को ऐड करके 85,560. सो 85560, HO में 66,000 एंड ब्रांच में 19,560. राइट? So we have everything in our trading and profit and loss account except the amount of closing stock. तो क्या हम closing stock की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से कंप्यूट कर सकते हैं? Yes, we can do that because हमारे पास यहाँ पे सभी तरह की जो इंफॉर्मेशन है ट्रेडिंग के अकाउंट के लिए वो अवेलेबल है. तो बच्चों मैं यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है मैं इसको निकालूंगा एज बैलेंसिंग फिगर. एज बैलेंसिंग फिगर. ओके, तो देखिए जरा, हेड ऑफिस में 1800 प्लस 13,000, 1800 प्लस 13,000 प्लस 35,000 प्लस 108500 प्लस 39,000 प्लस 66,000. The total value is 2,63,300. और यहाँ पे भी आएगा 2,63,300. इसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ 2 लाख, माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ 46,000 एंड माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ 2,300. वी गेट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट हेड ऑफिस वर्थ रुपीज 15,000. 15,000. इज दैट क्लियर? ऐसे ही ब्रांच के लिए भी कैलकुलेशन किया जाए तो ब्रांच के लिए बच्चों 46,000 प्लस 19,560, द टोटल इज 65,560. 65560. इसी पॉइंट को मैंने यहां लिख दिया 65560, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 65,200. इसमें से हम माइनस कर देंगे amount of the sales. What we will get? We will get the amount of the finished goods. ठीक है? अच्छा, कोई चीज यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है? जरा देख लें हम एक बार, क्या हमने सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड कर दी हैं फ्रॉम द ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू? जस्ट चेक. Have we recorded each and everything or not with respect to branch and HO? एक चीज बच्चों हमने मिस कर दी है, दैट वाज द ओपनिंग स्टॉक. इनिशियली हमने ये देख लिया था कि ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ पे ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 9200. आप लिखेंगे जरा, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 9200. देयर इज अ स्लाइट एरर, मेक द करेक्शन. द ओपनिंग स्टॉक of finished goods for the branch is 9200. So 9200 plus 46,000 plus 19,560. The amended figure will be 74,760. The amended figure is 74,760. Make the changes.
74,760। अगर कुछ बच्चों ने पहले से ही अपने आप से ठीक लिखा था, दैट्स रियली वेरी गुड, बट अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया था ओपनिंग स्टॉक पे, क्योंकि मैंने तो ऊपर वाले सेंटेंस पे ध्यान दिया था कि ये न्यूली ओपन ब्रांच है, बट स्टिल यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसका मतलब ब्रांच कुछ समय पहले ओपन हुआ होगा एंड ओपन होने पर शायद हमने कुछ स्टॉक ट्रांसफर कर दिया हो। ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन था, तो कोई बात नहीं, अब अमेंड कर लेते हैं हमारे आंसर को। 74,760 minus 65,200, we have a closing stock of 9560 for the branch, and the interesting fact is ये जो 9560 का अमाउंट है, इसमें 1500 का गुड्स इन ट्रांजिट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है, आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप याद करिए, आपको मैंने बात समझाई थी कि जब मैं यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ का अमाउंट लिखूंगा 46,000, यानी कि मैंने यहाँ पे 1500 रुपीज ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। तो जब मैं इन सभी आइटम्स को ऐड करूंगा, जब मैं डेबिट के सभी आइटम्स को ऐड करूंगा और उसमें से क्रेडिट के आइटम्स को माइनस करूंगा, तो जो मेरे पास में लास्ट में स्टॉक का अमाउंट आएगा उसमें ऑलरेडी ट्रांजिट का आइटम शामिल होकर आएगा, मुझे अलग से निकालने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे जो 9560 का अमाउंट हमारे सामने आया है, दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, आपको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जो मैंने गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ का अमाउंट है वो 44,500 के जगह पर कितना लिखा था, 46,000 लिखा था। ठीक है, टोटल कर लेते हैं हम, 15,000 प्लस 9560, इट गिव्स मी एन अमाउंट ऑफ 24,560। ठीक है, यहाँ पे जरा हम टोटल को भी करेक्ट करेंगे, थोड़ी सी आपको कटिंग करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द ओपनिंग स्टॉक। सो 13,000 प्लस 9,200, द टोटल अमाउंट इज फॉर द ओपनिंग स्टॉक 22,200। 22,200। okay, make the total now। 22,200 plus 1,800 plus 35,000 plus 108500 plus 39,000 plus 85,560, the total is 292,060, और ये दोनों जगह पर सेम आना चाहिए बच्चों। ठीक है, यही टोटल आपका क्रेडिट साइड पे भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप हेड ऑफिस के टोटल को और ब्रांच की टोटल को ऐड करेंगे तो ये 292,060 नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हमने या तो हेड ऑफिस के कॉलम में लिखे हैं या ब्रांच के कॉलम में लिखे हैं, उसको हमने टोटल में कैरी ओवर नहीं कराए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसको हमने टोटल कॉलम में कैरी ओवर नहीं करा, ओनली इंडिविजुअली एचओ एंड ब्रांच के कॉलम में लिखा है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड करके टोटल मत निकाल लेना। डोंट ऐड द टोटल्स ऑफ एचओ एंड ब्रांच टू गेट द फाइनल टोटल, नो, इट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर। आपको जो टोटल है वो इंडिविजुअली निकालना है टोटल कॉलम के लिए भी, राइट। तो जीपी हमारे सामने आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी आ चुका है, तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक अब बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक है 15,009,560, so 15,009,560, and this already includes the amount of goods in transit, there is no need to add it separately। ओके, और ये आपको मैंने फंडामेंटली समझा दिया कि इसमें क्यों शामिल कर दिया है हमने ऑलरेडी, बार बार इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब 24,560 includes the amount of goods in transit also। Is that done? Okay, next we have by gross profit brought down 66,019,560 and 85560। ठीक है जी, ये हो गया हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एंड अब पूरे क्वेश्चन में एक फाइनल स्टेप बाकी है, दैट इज द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाऊंगा डिटेल के अंदर
उसके बाद मैं आपको उसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में। सो कम टू वर्किंग नोट नंबर 3, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, दैट इज द स्टॉक रिजर्व। और इसी स्टॉक रिजर्व को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, स्टॉक रिजर्व। हाँ जी, तो बच्चों स्टॉक रिजर्व कब क्रिएट करना है, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द इनकॉर्पोरेशन, देन यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट, द स्टॉक रिजर्व। नाउ व्हाट इज अ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व क्यों बनाया जाता है? जैसा कि हम बोल रहे थे कि जब हम हेड ऑफिस और ब्रांच को इंडिविजुअली देखते हैं, देन इंडिविजुअली दे कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो आप कोई ऐसा कंडीशन इमेजिन करें जहां पे हेड ऑफिस ने 100 रुपीज के गुड्स, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हेड ऑफिस ने 100 रुपीज के गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर करे थे। 100 रुपीज के गुड्स उसने ट्रांसफर करे एट ₹120। 100 रुपीज का कॉस्ट था हेड ऑफिस के लिए, उसने ट्रांसफर किया एट 120, तो 120 सेलिंग प्राइस बन गया और 120 रुपीज पे ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। तो ब्रांच के पास कुल मिलाकर 120 रुपीज के कॉस्ट के गुड्स आ चुके हैं, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? हेड ऑफिस ने 100 रुपीज की कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करा, उसको 120 रुपीज पर सेल करा, और ब्रांच के पास जो खरीदने की कॉस्ट है वो कितनी बन गई, 120। अब जरा सोचिए कि अगर यही स्टॉक पूरा का पूरा ब्रांच ने आगे जाके सेल आउट कर दिया, यानी कि इसने पूरा 120 की कॉस्ट का स्टॉक सेल कर दिया 150 पर, तो यहाँ पे ब्रांच ने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया है, ब्रांच ने प्रॉफिट अर्न करा है 30 रुपीज, और यहाँ पे हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, 20 रुपीज। ये 20 रुपीज को और 30 रुपीज को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, रियलाइज्ड प्रॉफिट, रियलाइज्ड प्रॉफिट। एंड व्हाई इज इट अ रियलाइज्ड प्रॉफिट? क्योंकि जो गुड्स हैं वो एंड कस्टमर तक पहुंच चुके हैं, वो गुड्स जो थे वो सारे के सारे गुड्स एंड कस्टमर तक पहुंच गए, यानी हमने फाइनल सेल कर दिया। देखिए, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेल करा, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल सेल, इट इज एन इंटरनल सेल, और इंटरनल सेल से हेड ऑफिस ने कमा लिए 20 रुपए। बट ये एक्सटर्नल सेल कब ट्रीट होगा, जब वाकई में ब्रांच आगे किसी कस्टमर को बेच देगा। जब ब्रांच बेचेगा तो ब्रांच ने यहाँ पे 30 रुपीज कमाए, यानी कहने का मतलब हेड ऑफिस ने कमाई 20 रुपीज और ब्रांच ने कमाई 30 रुपीज, टोटल मिलाकर 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हो गया। किसको, हेड ऑफिस और ब्रांच को मिलाकर, क्योंकि जो आइटम 100 रुपए का था वो अल्टीमेटली हमने कितने में सेल कराए, 150। So 50 rupees in this case is my realized profit। और ये प्रॉफिट क्यों रियलाइज हो पाया, क्योंकि अल्टीमेटली हमने वो गुड्स सेल आउट कर दिए। बट आप ऐसा केस अब इमेजिन करिए कि हेड ऑफिस के पास 100 रुपीज का गुड्स ट्रांसफर हुआ कॉस्ट का एट ₹120 सेलिंग वैल्यू टू हुम, टू दी ब्रांच। ब्रांच के पास 120 की कॉस्ट का गुड्स रिसीव हो गया, बट ब्रांच ने क्या करा, ब्रांच ने 120 की कॉस्ट में से ओनली 80 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स सेल करा, ओनली 80 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स सेल करा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रांच ने ओनली 80 रुपीज की कॉस्ट का गुड सेल करा आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 120, और ये जो 80 की कॉस्ट का सामान है वो उसने 100 की सेल वैल्यू पर बेच दिया। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ब्रांच ने कितना प्रॉफिट रियलाइज करा। तो बच्चे सोचते हैं कि सर ब्रांच को लॉस हो गया, क्योंकि 120 की कॉस्ट है और 100 की सेल वैल्यू है, तो 20 रुपीज का लॉस है। नहीं बच्चों, आप गलत सोच रहे हैं। 120 की टोटल कॉस्ट के गुड्स उसको मिले, उसमें से उसने 80 की कॉस्ट के गुड्स 100 पे सेल करे, तो ब्रांच ने यहाँ पे कितना प्रॉफिट अर्न करा है, 20। तो ब्रांच के लिए 20 है रियलाइज्ड प्रॉफिट, एंड हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, अगेन 20, क्योंकि हेड ऑफिस ने 100 का सामान 120 में ट्रांसफर किया था। बट इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आज भी ब्रांच के पास कितना कॉस्ट का स्टॉक रिमेनिंग है, ब्रांच के पास अभी भी 40 की कॉस्ट का स्टॉक रिमेनिंग है, क्योंकि उसने 120 में से ओनली 80 की कॉस्ट का गुड्स सेल करा था। 40 की कॉस्ट का गुड आज भी रिमेनिंग है, हाँ या ना? पहले आप मुझे बताएं कि आपको इतनी कहानी जब समझ में आएगी ना, तो ही आप ये स्टॉक रिजर्व का पॉइंट समझ पाएंगे, वरना आप कभी इस पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, स्टॉक रिजर्व का कनेक्शन किससे, स्टॉक से। तो पहला आप समझिए स्टॉक कैसे बचेगा। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करे थे
और उसमें से ब्रांच अगर सारे के सारे गुड्स सेल नहीं कर पाता है तो जो ब्रांच के पास में स्टॉक रहेगा उसी की हम यहाँ पे कैलकुलेशन समझना चाह रहे हैं। तो ब्रांच के पास में कितना स्टॉक रिमेनिंग है, 40 की कॉस्ट का स्टॉक रिमेनिंग है। ये जो कॉस्ट है वो किसके लिए, हेड ऑफिस के लिए या ब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए। यानी ब्रांच के लिए 40 है कॉस्ट, और यही 40 एचओ के लिए क्या है, सेल वैल्यू, क्योंकि जो एचओ के लिए सेल वैल्यू है वो ब्रांच के लिए कॉस्ट वैल्यू है। सोचिए आप किसी दुकानदार के पास में गए, दुकानदार ने आपको कोई सामान 120 का बेचा, तो 120 दुकानदार के लिए क्या है, सेल वैल्यू, और 120 हमारे लिए क्या है, कॉस्ट, क्योंकि हमने खरीदा, खरीदने वाले के लिए कॉस्ट, बेचने वाले के लिए सेल वैल्यू। तो ये जो 40 की कॉस्ट है वो ब्रांच के लिए है, बट हेड ऑफिस के लिए 40 की क्या है, सेल वैल्यू। अब जरा सोचिए, जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो क्या इनकॉर्पोरेशन करते समय हमें ब्रांच के सारे बैलेंसेस हेड ऑफिस में ट्रांसफर करने पड़ेंगे? यस, करने पड़ेंगे। वो बैलेंस कौन कौन से हो सकते हैं? वो बैलेंस एसेट्स का हो सकता है, वो बैलेंस लायबिलिटी का हो सकता है, वो बैलेंस रेवेन्यू एक्सपेंस का हो सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है। तो जब बच्चों ब्रांच हेड ऑफिस के साथ में इनकॉर्पोरेशन करेगा और जब अपने असेट्स को ट्रांसफर करेगा, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ब्रांच अपने असेट के साथ में बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रांसफर करेगा? हाँ या ना, बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि ब्रांच हेड ऑफिस को अपना बचा हुआ स्टॉक भी ट्रांसफर करेगा? यस और नो? बिल्कुल करेगा सर, डेफिनेटली करेगा। तो यहां पे हमारे इस एग्जाम्पल में जब इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो ब्रांच हेड ऑफिस के पास में कितना स्टॉक ट्रांसफर करेगा, 40 का। ठीक है, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को 40 का स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हेड ऑफिस क्या करेगा, इसको मर्ज करेगा और साथ में क्या बनाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द एंटायर बिजनेस। तो बच्चों जब यहां पे ब्रांच ने 40 की कॉस्ट का स्टॉक ट्रांसफर करा, तो जरा सोचिए ये जो 40 का स्टॉक है वो ब्रांच के पास कहां से आया था? ब्रांच के पास वो स्टॉक हेड ऑफिस से आया था। यस, तो ब्रांच के पास स्टॉक हेड ऑफिस से आया था। जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तो यही सेम स्टॉक का कुछ बचा हुआ हिस्सा लौटकर हेड ऑफिस के पास पहुंच गया। अब हेड ऑफिस क्या सोच रहा है कि मेरा स्टॉक मेरे पास ही लौट कर आ गया, जो मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया था उसमें से कुछ स्टॉक अब मेरे पास फिर से लौट कर आ चुका है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज कब होता है, जब ब्रांच एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल आउट कर देता है। जैसे कि 120 की कॉस्ट में से 80 की कॉस्ट का गुड सेल आउट कर दिया, तो उसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया, बट जो 120 की टोटल कॉस्ट थी उसमें से जो 40 की कॉस्ट का सामान बच गया है, क्या 40 की कॉस्ट पे जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं, क्या वो आपने रियलाइज कर लिया? नहीं करा, क्योंकि अभी तक हमने ये एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल नहीं करा है। तो जब हम लोग ग्रुप की बात करेंगे, जब हम ग्रुप एज अ होल की बात करेंगे, तो क्या हम आपस में एक दूसरे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एचओ एंड ब्रांच आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। When HO is seen individually and when branch is seen individually, they can earn profit from each other. But when we talk about the group as a whole, nobody can earn profit with itself. क्या आप खुद से प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। देयर आर टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, लुक एट दिस फैक्ट। दो अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्राइज ए, एंटरप्राइज बी। Okay, so enterprise A, enterprise B. Now enterprise A is owned by Mr. Ravi and enterprise B is owned by Mr. Aman. Ravi and Aman are in the relationship of father and son. So Ravi is father and Aman is son. तो किसी एक पर्टिकुलर दिन पर ये दोनों लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए, शॉप ए एंड शॉप बी खोलकर बैठ गए। पूरा दिन भर निकल गया, कोई भी ग्राहक नहीं आया, एक भी जना सामान खरीदने नहीं आया, ना तो शॉप ए पर आया ना शॉप बी पर आया। तो क्या सोचा
कि आज हमें घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा, कोई भी सामान नहीं बिका, तो फादर और सन ने गेम खेलना शुरू करा। क्या गेम खेला सुनना। फादर ने अपनी शॉप में से 100 रुपीज की कॉस्ट का गुड्स सन को ट्रांसफर कर दिया। कितने पे? 120 पे। एंड फादर बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह मैंने 20 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया, वेरी गुड। सन ने क्या करा, वही सेम सामान जो उसकी 120 कॉस्ट का था उसको 150 पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो 120 का सामान ट्रांसफर करा 150 पे। बेटा ही बहुत खुश हो रहा है कि वाह मैंने 30 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया, क्योंकि अब ये गेम खेल रहे हैं, इनको बड़ा मजा आ रहा है कि वाह हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो फादर ने 150 का सामान फिर से 200 रुपीज में ट्रांसफर कर दिया सन को। एंड फादर इज गेटिंग वेरी मच हैप्पी कि मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट और अर्न कर लिया। ओके, उसके बाद सन ने क्या करा, 200 रुपीज का सामान 300 में अपने फादर को ट्रांसफर कर दिया। वही सामान, वो एक ही सामान बार बार घुमाए जा रहे हैं, कभी वो दे रहा है, कभी वो दे रहा है, कभी वो दे रहा है, कभी ये दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब सन क्या बोल रहा है, मैंने 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया, वेरी गुड। फादर ने फिर से ये 300 का सामान ट्रांसफर कर दिया 500 में। फादर इज अगेन वेरी हैप्पी कि मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ओके, सन ने क्या करा, सन ने फिर से 500 रुपए का सामान एट ₹800 फादर को ट्रांसफर कर दिया। ही इज अगेन वेरी हैप्पी कि मैंने 300 रुपए का प्रॉफिट और अर्न कर दिया। और इसके बाद इन्होंने गेम रोक दिया। और ये गेम रोकने के बाद में दोनों क्या बोल रहे हैं कि देखो मैंने प्रॉफिट कमा लिया 200 प्लस 50 प्लस 200, सॉरी 20 प्लस 50 प्लस 200। Ravi is saying that I have earned a profit of 270, and Aman is saying that he has earned a profit of 430. Now you being a CA, do you think that they have actually earned any profit? You are the CA of their firm. Do you think they have actually earned any profit? No. I would say they have earned zero profit. Because father and son, Ravi and Aman, are belonging to the same group. They are in the same group and they cannot earn profit from themselves. It is not possible. Individually A B से प्रॉफिट कमा सकता है, इंडिविजुअली B A से प्रॉफिट कमा सकता है, बट जब ग्रुप की बात करेंगे तो इन्होंने एक्चुअल में कुछ भी अर्न नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सेल हुआ ही नहीं है। आपने इंटरनल सेल से ही प्रॉफिट कमा लिया, आप खुश हो रहे हैं, ये चीज गलत है। यू कैन नॉट ट्रेड विथ योर सेल्फ। क्या मैं खुद से ही ट्रेडिंग कर सकता हूं? क्या मैं खुद से ही बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ऐसे आप समझे कि क्या कोई ग्रुप खुद के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। यानी एक्चुअल में आप समझिए, अगर ये 800 रुपीज जो लास्ट में ट्रांसफर हुआ था, जो अमन ने रवि को ट्रांसफर करा एट ₹800, उसके बाद रवि अमन को ना बेच के, उसके बाद रवि अमन को ना बेच के किसी बाहर वाले पर्सन को बेच देता। लेट अस से बाहर का पर्सन है अजय। तो अगर रवि ये सामान अजय को बेच देता एट ₹900, तब हम लोग डेफिनेटली कह देते कि हाँ इन्होंने वाकई में प्रॉफिट कमा लिया। और कितना प्रॉफिट कमा लिया? जो ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपीज था, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 100 रुपीज, उसको हमने सेल करा एट ₹900, यानी कि हमने कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लिया ₹800। मैं डेफिनेटली बच्चों इसको बोल देता कि हाँ ये प्रॉफिट है, क्योंकि अब ये एक्सटर्नल सेल हुआ, ग्रुप से बाहर चला गया, फादर एंड सन के ग्रुप से बाहर निकल गया। बट जब तक ये चीज फादर एंड सन के बीच में है, तो क्या प्रॉफिट वाकई में अर्न हुआ है? नहीं हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बच्चों क्या बोलते हैं? रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। So in this example of father and son, this ₹800 is the realized profit, but it can be earned only when we are selling it to the outside customers. But जब तक हम internally सेल कर रहे थे, तब क्या हमने कोई प्रॉफिट अर्न करा है? हमने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करा। We haven't earned a single penny of the profit. Why is that so? Because it has been done internally only. And we are in the same group, and in the group we cannot earn from ourselves. Individually Ravi can earn from Aman,
इंडिविजुअली अमन कैन अर्न फ्रॉम रवि, बट एज अ ग्रुप यू कांट अर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी जब तक ये एक्सटर्नल सेल नहीं करते हैं तब तक ये जो प्रॉफिट है 270 का और 430 का, इसको अपन क्या मान लेते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट मान लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ। ये एक्चुअल में रियलाइज कब होगा, जब आप किसी बाहर वाले को सेल करें। जब तक आप बाहर वाले को सेल नहीं करते, दिस इज डेफिनेटली व्हाट, एन अनरियलाइज प्रॉफिट। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कैंसल करना है। अब आप मेरी इस बात को समझ चुके होंगे। कैंसल क्यों करना है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के वक्त हेड ऑफिस के पास में उसी का ट्रांसफर करा हुआ सामान फिर से लौट कर आ रहा है। Assume me as the head office and you are my branches. So I have transferred you some goods which are costing me rupees 100. I transferred it to you for rupees 120. We both are in the same group. So individually I have earned a profit of rupees 20 from all of you. But you were able to sell only 80 rupees worth goods from the amount of 120, on which you have earned a profit of 20, because of that 80 rupees goods you have sold them for rupees 100. So you have earned a profit of rupees 20, which means that out of the value of 120 goods, 80 has been sold. 80 has been sold to the outside customers. So on that 80 rupees sale, definitely profit has been realized. But on the remaining amount of 40 rupees goods, the profit is yet to be realized, because there has not been any external sale till date with regard to goods worth rupees 40. Now, at the rate of incorporation, you will be sending me this 40 rupees goods कि सर आप ये गुड्स अपने पास में ले लो, बैलेंस ले लो, फिजिकली नहीं भेजोगे। आप बोलोगे सर ये जो 40 रुपए गुड्स का बैलेंस है या फिर से अपनी किताब में ले लो और मैं बताऊं कि ग्रुप ने कैसा परफॉर्म करा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये 40 रुपए का गुड जो था वो मैंने ही तुम्हें दिया था और तुमने मुझे इसका बैलेंस फिर से दे दिया। तो क्या हमने इस पे कुछ प्रॉफिट कमाया था? हाँ, मैंने आपसे प्रॉफिट कमाया था, बट क्या वो प्रॉफिट आपको रियलाइज हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि आपने वो बाहर सेल ही नहीं करा। जितना पोर्शन आपने बाहर सेल नहीं करा उसे प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। तो क्या मैं वो प्रॉफिट जोड़ पाऊंगा? नहीं। वो प्रॉफिट मैं तब जोड़ पाता जब आप उसको भी बाहर वाले को सेल कर देते। अगर आपने बाहर वाले को सेल नहीं करा तो इसका मतलब हमने कोई प्रॉफिट उस पर अर्न नहीं करा, और उसी प्रॉफिट को हम कैंसिल करना चाहते हैं, एंड इसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक रिजर्व। आपको मेरी ये कहानी समझ में आई? मैंने बहुत ही यहाँ पे आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ भी रटवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम बात को प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हैं कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेल करता है, यानी कि गुड्स सेंड करता है और उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, बट ब्रांच उसका कुछ पोर्शन सेल नहीं कर पाता, तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त वही गुड्स एज एन अकाउंटिंग एंट्री हेड ऑफिस के पास में आएंगे। तो हेड ऑफिस क्या सोचेगा, यही गुड्स हमने ब्रांच को ट्रांसफर किए थे और उस पर हमने प्रॉफिट अर्न करा था, बट क्योंकि ब्रांच एक्सटर्नली सेल नहीं कर पाया है उन गुड्स को, तो इसका मतलब ब्रांच ने अभी तक उस पर कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं करा, और क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज नहीं करा तो प्रॉफिट हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट हमने इंटरनली अर्न करा है, हमने एक्सटर्नली अर्न नहीं करा। और इंटरनली अर्नड प्रॉफिट कभी भी ग्रुप की अकाउंटिंग में काउंट नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। फिर तो सोचिए कि अगर आप ग्रुप के प्रॉफिट, ग्रुप के इंटरनल प्रॉफिट अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल कर देंगे, फिर तो बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना जाने आपस में कितना प्रॉफिट कमा लेगा। अपने खुद के ही बैंक्स को लोन दे देकर वो तो काफी सारा इंटरेस्ट की इनकम रेज कर लेगा और आपस में बहुत सारा इंटरेस्ट का इनकम शो करके हायर प्रॉफिट शो कर देगा। क्या आपको लगता है उसके सारे के सारे इन्वेस्टर्स मिसलीड होंगे? क्या नहीं लगता आपको ऐसा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो ही सकता है। तो बच्चों कभी भी ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये फंडा बनाया गया है, स्टॉक रिजर्व का फंडा, कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है उसमें प्रॉफिट ऐड करके, एंड ब्रांच उसमें से कुछ पोर्शन सेल नहीं कर पाता, तो जो पोर्शन सेल नहीं कर पाता है उस पे हमें क्या करना है, उस पे हमें रिजर्व का अमाउंट कैंसिल करना है, प्रॉफिट का अमाउंट कैंसिल करना है, बिकॉज वो प्रॉफिट रियलाइज होना बाकी था। दैट इज व्हाट योर स्टॉक रिजर्व। ओके, चलिए
बहुत बड़ी मैंने यहाँ पे चर्चा कर दी है, तो क्यों ना आप फाइनली अपन सॉल्यूशन पर आ जाएं। स्टॉक रिजर्व, तो पहली बात आप चेक करें ब्रांच के पास में कितना स्टॉक है। ब्रांच के पास में आज कितना स्टॉक है? ब्रांच के पास आज स्टॉक है 9560 का। क्या ये 9560 का स्टॉक जो ब्रांच के पास में अवेलेबल है, क्या वो पूरा का पूरा हेड ऑफिस से आया था? यस, वो पूरा का पूरा हेड ऑफिस से आया था। ये बात जानने क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों आप देखिए, यहाँ पे ब्रांच ने अपने आप से कुछ भी परचेज नहीं करा, ब्रांच ने अपने आप से कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा, एवरीथिंग इज जीरो। यानी ब्रांच कंप्लीटली यहाँ पे जो गुड्स के लिए डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर है? हेड ऑफिस के ऊपर है। ब्रांच के पास जितने भी बेचने के लिए गुड्स आते हैं वो हेड ऑफिस से आते हैं। बच्चों को लग रहा है सर इसका मतलब क्या ये ब्रांच डिपेंडेंट है? नहीं, आपको मैंने कहा था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट is from the accounting point of view. If the branch is capable of doing the accounting on itself, it is an independent branch. But if the branch does not have the freedom of doing the accounting by its own, then it is a dependent branch. यानी यहाँ पे हम डिपेंडेंसी गुड्स से चेक नहीं करते, कैश से चेक नहीं करते, जिम्मेदारी से चेक नहीं करते, हम केवल इतना अकाउंटिंग से। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी कहानी अब ये है कि ब्रांच के पास में आज की तारीख में स्टॉक कितना है? 9560। और ये स्टॉक कहां से आया था? ये स्टॉक उसके पास में हेड ऑफिस से आया था। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन के वक्त यही स्टॉक फिर से लौट कर कहां जाएगा? हेड ऑफिस के पास में जाएगा। तो इस स्टॉक पे जो भी प्रॉफिट का एलिमेंट है वो हमें कैंसिल करना है, एंड दैट इज योर स्टॉक रिजर्व। सो नोट दिस पॉइंट नाउ, स्टॉक रिजर्व I am writing closing stock with branch including the transit। ठीक है ना, ट्रांजिट का आइटम मिलाकर ब्रांच के पास में आज कितना क्लोजिंग स्टॉक है? ब्रांच के पास में स्टॉक है 9560 का। ट्रांजिट की वैल्यू मिलाकर स्टॉक का अमाउंट है 9560। आप मुझे बताएं इस 9560 पे हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था इस पे? 15% ऑन कॉस्ट, राइट? हेड ऑफिस वाज अर्निंग 15% ऑन कॉस्ट। बट ये 9560 क्या है? 9560 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ होम? द हेड ऑफिस। सो व्हाट इज द स्टॉक रिजर्व? स्टॉक रिजर्व एट द एंड, या स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं अपन, स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक। सो 9560 is the sale value for head office and the percentage of profit is 15% on cost, so it is 15 by 115। ये वाली बात तो आपको मालूम है कि मैंने 115 क्यों कराए कि 9560 सेल प्राइस है हेड ऑफिस का और प्रॉफिट 15% का कॉस्ट पे है। यही सेम चीज हमने ऊपर भी करी थी अभी। So 9560 into 15 by 115, it is rounded off to rupees 1247। 1247। The stock reserve in the closing stock is simply 1247। Are you getting my point? यानी कि 1247 यहाँ पे जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। कितने के स्टॉक पे? 9560 के स्टॉक पे। इस पे अभी तक ब्रांच ने प्रॉफिट अर्न नहीं करा। क्यों अर्न नहीं करा? क्योंकि ब्रांच ने इसको एक्सटर्नली सेल नहीं करा। और एक्सटर्नल सेल नहीं करा, ये क्यों मालूम चल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है बच्चों। अगर क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब क्या है? वो बेचना बाकी है। बेचना बाकी है मतलब उसे प्रॉफिट अर्न करना बाकी है, और क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना बाकी है तो कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है। सोचिए अगर ये 9560 का स्टॉक वो स्टॉक होता जो ब्रांच ने कहीं बाहर से परचेज करा होता, क्योंकि ये पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, अगर ब्रांच यहां पे खुद से भी कुछ परचेज कर लेता, लेट अस से कि ब्रांच यहां पे परचेज करता 1 लाख का, मैं इसे आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लेते हैं यहां पे ब्रांच अगर खुद से 1 लाख का परचेज करता और ये जो 9560 का स्टॉक यहां पे बचता है वो मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि वो इस 1 लाख में से बचा हुआ है, तो भी क्या आप ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल करते? नहीं करते, क्योंकि ये जो 9560 का स्टॉक है वो किस में से है? 1 लाख की परचेज में से। और ये परचेज किसने कराए? ब्रांच ने खुद ने कराए। यानी ब्रांच के पास ये सामान एचओ से नहीं आया था,
जो सामान ब्रांच के पास एचओ से आया था और अगर वो सामान बचा रह गया तो उसी पे आपको कैंसिल करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि वो ग्रुप के विद इन का प्रॉफिट है। ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपको क्या मालूम कि 9560 हेड ऑफिस से आया था। वो इसलिए मालूम चल रहा है क्योंकि ब्रांच ने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल परचेज नहीं कराया। आप देखिए, ना तो ब्रांच ने मैन्युफैक्चरिंग करा, ना ब्रांच ने एक्सटर्नल परचेज करा। तो सिंपल सी बात है, जो भी ब्रांच के पास में स्टॉक बचा हुआ है वो हेड ऑफिस से आया हुआ स्टॉक है। ठीक बात है बच्चों। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्टॉक रिजर्व का अमाउंट है अंत पे वो कितना आ चुका है, 1247। 1247 इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व इन द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक रिजर्व हमारे पास पहले से भी रखा हुआ है। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व एग्जिस्टिंग, कुछ स्टॉक रिजर्व हमारे पास पहले से भी है। कितना है देखें जरा, ट्रायल बैलेंस में गिवन था 1200। 1200 का स्टॉक हमारे पास में पहले से है, स्टॉक रिजर्व पहले से है। आप ऐसा मान के चले कि हमें करंट ईयर में न्यू प्रोविजन चाहिए 1247 का, हमारे पास पहले से 1200 का ओल्ड प्रोविजन अवेलेबल है। तो हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना क्रिएट करना पड़ेगा इस साल, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्स्ट्रा कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 47। सो एक्स्ट्रा स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड। आप ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में तो एंट्री 1247 से आएगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री 47 रुपीज से आएगा। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमें क्रिएट करना है 1247, हमारे पास 1200 का पहले से अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा कितना बनाएंगे 47, बट स्टिल बैलेंस शीट में एंट्री कितने से होगा, 1247 से होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ये, नोट कर लीजिए। आई होप जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक रिजर्व का आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके बारे में थियोरेटिकली भी लिखेंगे, आप चिंता ना करें, वहां पे भी मैं आपको एग्जाम्पल लेके लिखवा दूंगा। बट पहले आप इस क्वेश्चन को फिनिश करने के बारे में सोचें। अब काफी टाइम से अपन डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 1247 इज द रिक्वायर्ड स्टॉक रिजर्व। नोट कर लिया सबने? लिखें इसको। So I'm writing to stock reserve. To stock reserve 47 हेड ऑफिस ने क्रिएट किया है एंड टोटल कॉलम में आएगा स्टॉक रिजर्व, it has been made by head office and shown in the total column. Finally, I can find out the amount of net profit. स्टॉक रिजर्व का हम रेफरेंस डाल सकते हैं, इट इज अवर वर्किंग नोट नंबर 3। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। बच्चों ध्यान रखें, स्टॉक रिजर्व की एंट्री ब्रांच नहीं बनाता, स्टॉक रिजर्व का एंट्री हेड ऑफिस बनाता है, क्योंकि हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न किया था और हेड ऑफिस ही उसे कैंसल करता है। ठीक है। तो 66,000 is the total for head office, out of which we are reducing amount of 13,900, 22,500, 12,500 and 47. So we get a net profit of 17053 for head office. For branch, the total is 19,560. So 19,560 reduced by 156, reduced by 4,000, reduced by 6,200 and finally 2,300. We get a profit of 6,904. 6,904. And finally
the total is 85,560, 85,560 minus 156 minus 17,900 minus 28,700 minus 14,800 minus 47, it is 23,957, 23,957, the combined profit, 23,957. Okay, so this is my combined and the individual trading and P&L account. तो HO का यहाँ पे इंडिविजुअल भी आ गया, ब्रांच का इंडिविजुअल भी आ गया और साथ में टोटल यानी कि कंसोलिडेट होकर भी आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आखिरी चर्चा पे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टॉक रिजर्व की एंट्री बनाई है 1247 से। इसको शो करने के हमारे सामने दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक रिजर्व को शो करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि हम एसेट में स्टॉक में से इसको लेस करके शो कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। जो भी हमें स्टॉक का अमाउंट गिवन है हम उसको स्टॉक में से लेस करके शो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, क्योंकि हमने स्टॉक का अमाउंट ऑलरेडी लिख दिया है तो उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लायबिलिटी साइड में शो कर सकते हैं। सो ऑन द लायबिलिटी साइड आई एम शोइंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, एट व्हाट अमाउंट, अमाउंट इज 1247। सो 1247 के अमाउंट से हेड ऑफिस में लिखा जाएगा, ब्रांच में नहीं आएगा एंड टोटल में आएगा। स्टॉक रिजर्व का अमाउंट हेड ऑफिस में आया, ब्रांच में नहीं आएगा, टोटल में आएगा। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा है सर ये कॉन्ट्रा आइटम है, टोटल में आप क्यों लिख रहे हो। बच्चों ये कॉन्ट्रा आइटम नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा आइटम, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफर करे थे, ब्रांच ने उसका बैलेंस हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया। तो जो हेड ऑफिस ने पहले प्रॉफिट अर्न करा था उस प्रॉफिट का कैंसलेशन किया जा रहा है, इसलिए कॉन्ट्रा आइटम नहीं। दैट इज व्हाई इट इज शोन इन द टोटल कॉलम ऑल्सो। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट शो करा है, वरना आप इसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से भी कम कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है। बट मैंने इंस्टेड क्या करा, मैंने यहाँ पे शो कर दिया हेड ऑफिस के कॉलम में 1247 एंड टोटल कॉलम में 1247। डन। अब बच्चों हमें क्या करना है, टोटल करना है बैलेंस शीट का और इसको टैली कराना है। बट उससे पहले आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ पे ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस जो है वो भी नोट डाउन करना है। उसके अलावा हमने बेसिकली यहाँ पे सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, बस हमें यहाँ पे हेड ऑफिस का अकाउंट और जो ब्रांच का अकाउंट है वो शो करना बाकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया गया है, देखिए ज़रा प्रॉफिट अर्न हुआ है। हेड ऑफिस का प्रॉफिट है 17053, ब्रांच का प्रॉफिट है 6904 एंड टोटल प्रॉफिट है 23957। तो प्रॉफिट का प्रेजेंटेशन बाकी है और ये जो बैलेंसेस हैं हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, इसका भी प्रेजेंटेशन बाकी है। तो मैं फिलहाल इसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 4। ब्रांच अकाउंट का बैलेंस क्या होगा इसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 4। ध्यान दीजिएगा जरा वर्किंग नोट नंबर 4 पे। बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट, बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ब्रांच अकाउंट का और हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस क्या लिखा जाएगा, दोनों का बैलेंस सेम आना है वैसे भी। तो आप देखिए रिकंसाइल्ड बैलेंस क्या था, रिकंसाइल्ड बैलेंस ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला है। एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, सो एज पर माय वर्किंग नोट नंबर 1 द रिकंसाइल्ड बैलेंस of branch account was 3500 और यही सेम हेड ऑफिस अकाउंट के लिए भी था। अब आपको मैंने ये कहा कि हमें इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, किसका प्रॉफिट, ब्रांच का। ये बच्चों प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है।
जो भी ब्रांच अकाउंट है या हेड ऑफिस अकाउंट है उसको प्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट शो करेगा, जब ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस अकाउंट शो करेगा यहाँ पे, तो वो इस हेड ऑफिस अकाउंट के अंदर खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट जोड़कर बताएगा। जो भी ब्रांच ने प्रॉफिट अर्न करा है वो प्रॉफिट हेड ऑफिस अकाउंट में जोड़कर बताएगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग से मेंशन नहीं करना है। ब्रांच जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई अलग से एंट्री नहीं बनाएगा। ठीक है ना, ब्रांच क्या करेगा, उसने जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया है उसको वो हेड ऑफिस के अकाउंट में एडजस्ट करके शो करेगा। यही प्रेजेंट करने का तरीका है। और जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस होगा वही हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस होगा। तो आप दोनों में से किसी का भी एक का बैलेंस निकाल दीजिए, बात एक ही है। तो प्रॉफिट ऑफ ब्रांच इज हाउ मच, 6904। सो 3500 में हमने यहाँ पे 6904 को ऐड कर दिया तो हमारे पास में बैलेंस आया है 10404। 10404 is the final balance of head office account and the branch account, 10404। ठीक है, तो 10404। अब कई बच्चों को ये वाली जो बात है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों ऐसा ही करना है, ठीक है। 10404। अच्छा, अब सोचिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कैसे शो करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे 10404 की जगह पर 3500 शो करते तो क्या आपको लगता नहीं है कि ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता? कितना शो करता? ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता 6904 का। अब बच्चों आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ये 6904 आपको अलग से शो नहीं करना, ये 6904 आपको हेड ऑफिस के अकाउंट में शो करना है ऐड करके। तो उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे हेड ऑफिस का अकाउंट शो करूंगा एट ₹3500 जो मेरा ओरिजिनल रिकंसाइल्ड बैलेंस है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से यहाँ पे शो करना पड़ेगा एट अ बैलेंस ऑफ 6904। तो मैं आपको इसी बात के लिए मना कर रहा हूँ कि बच्चों इस प्रॉफिट को आप अलग से शो नहीं करेंगे, इसको आप हेड ऑफिस के अकाउंट में शो ऐड करके शो करेंगे। इसमें क्या कुछ गलत हो गया क्या? नहीं ना, कुछ गलती तो नहीं हुआ। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 10404 ये किसका बैलेंस है बच्चों? ये बैलेंस है हेड ऑफिस अकाउंट का ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सिमिलरली हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ब्रांच का बैलेंस है वो कितना आएगा? 10404, क्योंकि ये दोनों बैलेंसेस एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसेस हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रा आइटम में टोटल में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, अब फाइनली अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच में तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपन ने कहां पे ऐड कर दिया? वो हमने हेड ऑफिस में ऐड कर दिया। ठीक है, और टोटल एनपी कितना आया था? टोटल प्रॉफिट का अमाउंट था 23957। टोटल प्रॉफिट का अमाउंट था 23957। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस में भी 23957 लिखा जाएगा? जी हाँ बच्चों, हेड ऑफिस में आपको 23957 लिखना है। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप ये बोलेंगे सर ये आपने गलत कर दिया है, क्योंकि हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट है वो तो 17053 है, फिर आपने 23957 क्यों लिखा? बच्चों मैंने इसलिए लिखा ताकि हम अकाउंट को मैच करा पाए, हम बैलेंस शीट को मैच करा पाए। अब देखिएगा, हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का बैलेंस क्या था? हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ब्रांच का रिकंसाइल्ड बैलेंस था वो कितना था? जरा देखिए, हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच का रिकंसाइल्ड बैलेंस 3500 था। मैंने इस 3500 के अमाउंट में प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करा 6904, तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना हो गया? 10404। अब इतनी बात आप भी जानते हैं कि अगर हमने कोई चीज एसेट में ऐड करी है तो डेफिनेटली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी या कैपिटल भी होना चाहिए, वरना बैलेंस शीट कभी टैली नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने 6904 का अमाउंट ब्रांच अकाउंट में ऐड करा है तो मुझे ये 6904 कॉरेस्पॉन्डिंगली कहीं ना कहीं और भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस शीट मैच होगा, वरना बैलेंस शीट मैच कैसे कराएंगे? तो हम क्या कर रहे हैं,
हम हेड ऑफिस के प्रॉफिट के बैलेंस में ब्रांच का प्रॉफिट भी ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा बैलेंस शीट टैली हो, वरना हमारा बैलेंस शीट कभी टैली हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एचओ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिया है 23957। एंड अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि सर ये गलत है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, फटाफट से मैच कराइए बैलेंस शीट। 50,000 प्लस 13,000 प्लस 1247 plus 23957. The total is 88204. The total of balance sheet is 88204 for head office. चेक कर लीजिए दोनों जगह पर सेम वैल्यू आना चाहिए। एट एट टू जीरो फोर। अगर कोई बच्चा इसका ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिवली करना चाहता है, स्टॉक रिजर्व को माइनस करके शो करना चाहता है, तो उसका बैलेंस डेफिनेटली कुछ और आ सकता है, बट मैं जनरली स्टॉक रिजर्व को हमेशा लायबिलिटी में ही शो करता हूँ। नेक्स्ट ब्रांच के लिए देखिए 156 प्लस 10404, टोटल इज 10560 10560, और यहां पे भी आ रहा है 10560। द एंटायर बिजनेस, तो एंटायर बिजनेस के लिए 156 प्लस 50,000 प्लस 13,000 प्लस 1247 प्लस 23957. For the entire business, the total is 88360, 88360, और यही आपका टैली भी होना चाहिए दोनों तरफ। So it is matching on both the sides, 88360. डन। तो आप देखिए हमने इतने लंबे डिस्कशन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, और आपको मैंने यही कहा था क्लास के स्टार्टिंग में भी कि आज हम केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप देखिए मैंने एक सिंगल क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसेस समझाया, हमने स्टॉक रिजर्व के पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्ट्रेच करके समझाए, कॉन्सेप्चुअली समझाए, रटा कुछ भी नहीं है। So have you all understood the solution? कुछ चीज़ें डेफिनेटली डिफरेंट हैं जिसको समझने में शायद आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो ब्रांच का बैलेंस है उसको हमने हेड ऑफिस के अकाउंट में ऐड कर दिया, फिर हमने हेड ऑफिस के जो कॉलम है उसके अंदर हमने ब्रांच के अंदर भी प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करा है जो ब्रांच का प्रॉफिट है, उसके अलावा हमने वही ब्रांच का प्रॉफिट एचओ के पीएनएल में भी ऐड कर दिया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं तो शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, और जब और क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों कॉपी कर लिया है ना सबने? चलिए तो हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको स्टॉक रिजर्व के बारे में लिखवाऊंगा, डेफिनेटली हम लिखेंगे, बट आज की क्लास में डिस्कशन काफ़ी सारा हो चुका है और बहुत ही भारी डिस्कशन हुआ है, तो क्यों ना आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके आएँ। फिर कल मैं आपको कल की क्लास में स्टॉक रिजर्व का पॉइंट लिखवाऊंगा, एंड देन फिर हम कुछ और भी नए नए क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, हमारे सारे के सारे जितने भी नोट्स थे इंडिपेंडेंट ब्रांच के उनको फिर से पढ़ें, जिससे आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय।